So, hello officers, this is me Jailesh Gupta and I welcome you all to Vyas IAS for our course which is going on for Industrial Relations and Labor Laws for UPSC EPFO examination. As in the previous section, we did some MCQs regarding the previous topics we have covered, such as approaches to industrial relations, basics of industrial relations, and trade unions. Today we would be doing about the industrial disputes. So, what should be the process we would be following? First of all, let me show you the MCQs ताकि जब हम हमारा लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हो तो यू वुड फोकस ऑन द some aspects which are important. Right. Now, first of all, this question is regarding the works committee. तो यहाँ पे वर्क्स कमेटी जो कि हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के अंडर में आती है, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस? सो द फर्स्ट इज इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल establishments employing 50 or more workers, mandatory for establishments employing 100 or more workers, deals exclusively with wage related disputes, then appointed by trade unions. यहाँ पे हम अभी इसे सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व हम इन्हें लास्ट में करेंगे, बट मोटिव ये है कि हम क्वेश्चंस के थ्रू थोड़ा सा आइडिया लग जाए हमें कि हमें किन पर्टिकुलर पार्ट्स में फोकस करना है. राइट. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी. The first one is it can summon witnesses and examine evidence. It comprises exclusively of sitting high court judges. It can compel production of relevant documents. Submits findings to the government. Now, यहाँ पे ये केस स्टडी टाइप से कि एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स है एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का जो कि डेलिबरेटली अपने प्रोडक्टिविटी को स्लोअर पेस में लेके जा रहे हैं टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज. तो यहां पे ये जो इंडस्ट्रियल एक्शन है इसे क्या बोलेंगे? सो वर्क टू रूल स्ट्राइक, गो स्लो स्ट्राइक, पेन डाउन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक, ये सारे टर्म्स अभी आपको नए लग रहे होंगे बट वी वुड बी डीलिंग विद देम इन अवर लेक्चर. नाउ द फोर्थ वन इज विच एडजुडिकेटिंग बॉडी under the Industrial Disputes Act has jurisdiction over disputes involving bonus, profit sharing, provident fund and gratuity. Labor Court, Industrial Tribunal, National Tribunal, Board of Conciliation. ठीक है, करेंगे हम. Now the fifth question is regarding the case study. A textile factory employing 300 workers faces a situation where workers have surrounded the manager's office, preventing them from leaving until their demands for better working conditions are met. The workers have not officially declared a strike but are refusing to work. यहाँ पे इन्होंने बेसिकली घेराव किया हुआ है. राइट. हम करेंगे आगे. नाउ हाँ, ये टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स में आ जाएगा. पिकेटिंग, घेराव, बॉयकॉट, स्टे अवे स्ट्राइक, ये सभी अभी हम पढ़ेंगे. नाउ सिक्स्थ वन इज रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल अनरेस्ट. Economic causes are the only significant factors leading to industrial disputes. Second one is political influence can be a cause of industrial unrest. Trade union rivalries can lead to industrial disputes. Historical legacy from the independence era has no impact on current industrial relations. तो यहाँ पे भी है एक क्वेश्चन. Then this is regarding the Board of Conciliation. ये constitute किया जाता है after conciliation officers fail to resolve disputes. इनके डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं. देन ये रिपोर्ट और मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट फॉर द गवर्नमेंट प्रिपेयर करता है एंड इट ऑल्सो हैज द पावर्स टू एनफोर्स इट्स रिकमेंडेशंस. इसमें क्या आंसर सही होगा, दिस वी वुड बी डीलिंग आफ्टरवर्ड्स. नाउ इट इज अबाउट द नेशनल ट्रिब्यूनल्स. दे डील विद डिस्प्यूट्स अफेक्टिंग मल्टीपल स्टेट्स. प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बिलो 65 ईयर्स ऑफ एज के होने चाहिए. देन एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ओवर द रिफर्ड मैटर्स. Labor courts can simultaneously adjudicate on matters referred to national tribunals. तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. हम नेशनल ट्रिब्यूनल्स के बारे में भी अभी पढ़ेंगे. Now this is regarding something types of strike. Which of the following forms of industrial action involves workers demonstrating outside the workplace, displaying placards and influencing public and co-workers to join? घेराव, पिकेटिंग, बॉयकॉट और स्टे अवे स्ट्राइक. तो यहाँ पे बेसिकली पिकेटिंग होगा. देन अबाउट द लेबर कोर्ट्स, इनका प्रेसाइडिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन दी हुई है.
He must have been a judge of high court, and they deal with disputes related to withdrawal of statutory concessions. They have jurisdiction over bonus and profit sharing matters. They handle disputes about wrongful dismissal of employees. Then 11th is match the list. Lightning strike, token strike, work to rule strike, पेन डाउन स्ट्राइक, 1 2 3 4. तो यहाँ पे बेसिकली लिस्ट को मैच करने का है, ये भी हम पढ़ेंगे. देन अबाउट द इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन, इसका मतलब क्या हुआ? इट इन्वॉल्व्स ओनली प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट वर्कर्स. इट इंक्लूड्स attendance and punctuality regulations. It promotes efficiency in the workforce. It requires clear rules and expectations. Which of the statements given above are correct? 1 and 2 only, 2 and 3. So ये भी हम अब आगे पढ़ने वाले हैं. Then it's about the industrial disputes and identify which ones are considered economic causes. Dearness allowance dispute, non-recognition of unions, profit sharing conflicts, political influence in unions, and then bonus related disagreements. Then managerial causes of industrial disputes: defective recruitment policies including favoritism, bribery, poor leadership occurs only at the worker union level, workers demand for participation in management is a common cause, then violation of code of conduct by employers leads to disputes. ये भी हम पढ़ेंगे आगे. देन दिस इज रिगार्डिंग द केस स्टडी, जहां पे 150 वर्कर्स काम करते हैं और वहां पे एक नई अटेंडेंस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है विदाउट कंसल्टिंग द वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स. वर्कर्स काम में तो आते हैं बट कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं, जो कि उनके जॉब डिस्क्रिप्शंस के जो ऑन पेपर जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अलावा. फिर 2 दिन बाद दे स्टार्ट वर्किंग एट अ डेलिबरेटली स्लोअर पेस, वो अपने काम को और धीरे धीरे करने लगते हैं. देन मैनेजमेंट फिर रिएक्शन आता है एंड द मैनेजमेंट थ्रेटन्स टू क्लोज द फैसिलिटी टेम्पोरेरली. तो यहां पे क्या सीक्वेंस है ये अभी हम पढ़ेंगे. यहां पे मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1, लिस्ट 2. लिस्ट 1 कंसिलिएशन ऑफिसर की क्या ड्यूटी है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. देन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की क्या होगी, नेशनल ट्रिब्यूनल की क्या होगी, एंड देन लेबर कोर्ट की क्या होगी. The 17th one is regarding the industrial peace. इसके essential elements कौन कौन से हैं ये होगा यहाँ पे. And then this is regarding the composition of adjudicating bodies. लेबर कोर्ट के बारे में है, then industrial tribunal, then national tribunal, and then assessors के बारे में है. Then हमारा 19th question है, with reference to the form of secondary strikes, which of the following statements is correct? They target primary employer, they are always illegal. They target organization linked to primary employer, they can only be conducted with government permission. Then 20th is regarding the industrial jurisprudence. It deals exclusively with collective bargaining. It covers occupational health and safety laws. It includes regulations for trade unions. It only applies to public sector enterprises. Then हमारा 21st क्वेश्चन भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. अ टेक्सटाइल कंपनी एम्प्लॉइंग 250 वर्कर्स एक नई ऑटोमेटेड मशीनरी इंट्रोड्यूस करती है दैट विल रिड्यूस द वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट बाय 40%. Then the management announces a retrenchment plan without prior consultation with the union. Workers respond with multiple actions over a week. ये एक हफ्ते के एक्शन है हमारे वर्कर्स के. एंड यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन सबको क्या टर्म दिया गया है, क्या टर्म्स यूज हो गए इन सब के लिए. सो ये सारी टर्म्स अभी हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज रिगार्डिंग द वर्कर्स डेमोन्स्ट्रेट आउटसाइड द फैक्ट्री विथ प्लकार्ड्स. वर्कर्स रिपोर्ट बट वर्क एट रिड्यूस्ड स्पीड. Workers surround the manager's office, and then in the day 7 it's the complete work stoppage. Now 22nd, कंपनी ए मेंटेन्स, यहां पे इंडस्ट्रियल पीस के ऊपर क्वेश्चन है. कंपनी ए मेंटेन्स ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स बट ऑफर्स बिलो मार्केट वेजेस. देन कंपनी बी प्रोवाइड्स एक्सीलेंट बेनिफिट्स बट हैज नो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम. कंपनी सी हैज बोथ गुड वेजेस एंड कम्युनिकेशन but practices discrimination. Company D maintains all positive practices but has poor safety standards. तो यहाँ पे कौन सी कंपनी होगी जो इंडस्ट्रियल पीस को
अटेन करेगी। देन 23rd भी हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फेसेस द फॉलोइंग सिचुएशन। फर्स्ट, 2 महीने के लिए पेमेंट को डिले कर दिया गया है। सेकेंड इज अनसेफ वर्किंग कंडीशन, देन आर्बिट्ररी ट्रांसफर ऑफ यूनियन लीडर्स एंड देन नो रिस्पॉन्स टू ग्रीवांसेस फाइल्ड। तो यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियल वर्कर्स एक्शन लेना चाहें तो यहाँ पे कौन से सीरीज ऑफ एक्शन होंगे जो वर्कर्स ले सकें। देन 24th इज विथ रेफरेंस टू सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। यहाँ पे हमें मैच करना है लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो कि किस में डील होंगे, कौन इसे डील करेगा, राइट। देन 25th इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी इंप्लीमेंट्स द फॉलोइंग चेंजेस, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, रिवाइजेस शिफ्ट टाइमिंग्स, चेंजेस बोनस कैलकुलेशन मेथड, मॉडिफाई सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। तो ये सारी चीजें हैं। देन द लास्ट क्वेश्चन 26th कि a worker with 15 years of services has been late to work 5 times in a month, refused overtime during peak production, participated in a peaceful protest, failed to wear safety equipment twice। तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से एक्शंस हैं जहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शंस लिया जा सकता है। So this was our last question. Now let's begin with the industrial disputes. Please give me 5 seconds. So yes, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का क्या मतलब समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे अगर हम दो टर्म देखें, इंडस्ट्रियल और डिस्प्यूट। सो इंडस्ट्रियल मतलब कि इंडस्ट्री से रिलेटेड, डिस्प्यूट का मतलब कि कोई कॉन्फ्लिक्ट या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, राइट। और ये किसके किसके बीच में होगा, बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट। कोई इनकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इट वुड बी रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट, जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड ही होगी। तो यहां पे डिसएग्रीमेंट होता है, किनका होता है, बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन एंड वर्कमैन, विच रिलेट्स टू एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ लेबर, राइट। फिर यहां पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में बेसिकली क्या होता है, जिन दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है, दे ट्राई टू प्रेशराइज ईच अदर कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री करो। सो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट जो बेसिकली जब होता है, तो दिस मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट, स्लो डाउन्स, वर्क टू रूल एंड दीज थिंग्स, राइट। तो हमारी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के अंडर डेफिनेशन दी हुई है, एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन एंड वर्कमैन which relates to employment, non-employment और conditions of labor, right। तो यहां से अगर हम कुछ कंक्लूड करना चाहें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा कब, लेट्स सी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वुड बी देयर व्हेन देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंस इन व्हाट, इन ओपिनियन, राइट। तो यहां पे वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। देन देयर शुड बी पार्टीज टू डिस्प्यूट। पार्टीज का मतलब क्या हुआ कि यहां पे एक लार्ज ग्रुप होना चाहिए, वर्कमैन का एंड एम्प्लॉयर्स का, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स में, राइट। और फिर ये डिस्प्यूट हमारे जो वर्कर्स हैं वो खुद रेस कर सकते हैं, या फिर उनके जो यूनियन और फेडरेशन होता है तो उनके बिहाफ में ये डिस्प्यूट्स को रेस किया जा सकता है। इनिशियली हो सकता है कि इंडिविजुअल डिस्प्यूट हो, बट जो वर्कर्स होते हैं तो दे कैन टेक द डिस्प्यूट अपने खुद का, और एक कम्युनिटी का डिस्प्यूट लेके वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, राइट, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होता है या फिर कंडीशंस ऑफ वर्क वगैरह हो गई। एंड देन थर्ड वन इज सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, राइट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट। तो यहां पे सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है, इट कैन रिलेट टू एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट और कंडीशंस ऑफ वर्क, राइट। देन fourth one is
डिस्प्यूट जो होगा दैट शुड बी इन द इंडस्ट्री, कोई पर्सनल मैटर नहीं होगा इसमें. सो द डिस्प्यूट मस्ट रिलेट टू एन इंडस्ट्री. यहां पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पॉसिबल ही नहीं है बिना इंडस्ट्री के. नाम में ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में इंडस्ट्री आता है, तो यहां पे तो पॉसिबल ही नहीं है. इंडस्ट्री का मतलब क्या हो जाएगा, जहां पे एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी हो रही हो और यहां पे कॉपरेशन हो रहा हो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, ताकि ये गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके. राइट. सो दीज आर बेसिक थिंग्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम टर्म्स. इंडस्ट्रियल अनरेस्ट. सो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट का मतलब क्या हुआ, डिससेटिस्फैक्शन, कॉन्फ्लिक्ट एंड अनरेस्ट इन द वर्क प्लेस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज और अमंग एम्प्लॉयज. तो यहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में हो सकता है, एंड देन एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज के बीच में भी हो सकता है. एंड दिस अनरेस्ट कम्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राइक्स. स्ट्राइक्स का मतलब होता है कि काम रोक देना, प्रोटेस्ट, स्लो डाउन्स, वर्क टू रूल. स्लो डाउन का मतलब हो जाएगा कि काम को धीरे पेस में करना, जो कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं. एंड देन अदर कलेक्टिव एक्शंस. कॉजेस क्या हो सकते हैं हमारे इंडस्ट्रियल अनरेस्ट के. अगर वेजेस रिलेटेड कॉज देखें तो इट कैन बी लो पे और पेमेंट होने में डिले होना. देन वर्किंग कंडीशंस, अनसेफ होना या फिर एक्सेसिव वर्कलोड होना, 15-15 घंटे काम करा रहे हैं. जॉब सिक्योरिटी, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट हो गया, ले ऑफ हो रहा है. देन एम्प्लॉय राइट्स, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हरेसमेंट हो रहा है. एंड ऑल्सो द लास्ट कॉज कैन बी ग्रीवांसेस अगेंस्ट द मैनेजमेंट, अनफेयर पॉलिसीज हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है. देन व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट, हमारा प्रोडक्शन डिसरप्ट हो सकता है, प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं, जैसा कि हमने सैमसंग वाले केस में देखा था, $100 मिलियन का लॉस हो रहा था. एंड देन डैमेज टू कंपनी रेपुटेशन. स्टिल यहां पे हम सैमसंग वाले एग्जाम्पल को काफी अच्छे से कंसीडर कर सकते हैं, वहां पे कंपनी का रेपुटेशन जरूर डाउन हुआ. देन नेगेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट, इंडस्ट्री वाइड इफेक्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो सकता है. व्हाट आर द प्रिवेंशन एंड रेजोल्यूशंस. सो प्रोएक्टिव मैनेजमेंट एंगेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट पहले से ही इस चीज में एक्टिव हो और चीजों को सही कर दे. देन इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स होने चाहिए, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन. एंड ऑल्सो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए थ्रू एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन एंड ओपन डोर पॉलिसीज. देन अभी हमने देखा है इंडस्ट्रियल अनरेस्ट. नाउ लेट्स सी अबाउट द इंडस्ट्रियल पीस. सो यहां पे इंडस्ट्रियल पीस का क्या मतलब हो रहा है, अ हार्मोनियस एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, फ्री फ्रॉम डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. तो फिर यहां पे सिग्निफिकेंस क्या होगा, इट बेसिकली एनहांसेस प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. अगर इंडस्ट्री में पीस बना रहेगा तो प्रोडक्टिविटी भी रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी रहेगा. यहां पे हम टाटा का एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पे 99 ईयर्स से कोई एक मेजर स्ट्राइक नहीं हुई है ट्रेड यूनियन की. देन अट्रैक्ट्स एंड रिटेन्स स्किल्ड वर्कर्स. डेफिनेटली अगर पीस होगा तो जो भी स्किल्ड वर्कर्स होंगे वो उसी प्लेस पे काम करना चाहेंगे जहां पे उन्हें मेंटल पीस और वर्किंग कंडीशंस बेटर मिलेंगी. देन इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोरल एंड कंपनी रेपुटेशन. यहाँ पे एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कंपनी की रेपुटेशन भी बनी रहेगी. देन व्हाट आर द मेथड्स टू अचीव इंडस्ट्रियल पीस. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द effective communication, regular dialogues हो, meetings हो, proper communication हो between the management and the employees, then fair and equitable employment practices, competitive wages and benefits मिल रहे हो, working conditions safe हो, career growth की opportunity हो. then conflict resolution mechanisms अगर देखें तो grievance redressal procedures, negotiation, conciliation and arbitration. देन इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन का क्या मतलब हुआ. सो डिसिप्लिन का मतलब कि किसी रूल पे स्ट्रिक्ट रह के वो रूल्स को फॉलो करना. सो अ सेट ऑफ रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स गवर्निंग एम्प्लॉय बिहेवियर इन द वर्क प्लेस. तो
तो यहाँ पे ये एम्प्लॉय के लिए जो रूल्स होते हैं, एक प्रॉपर बिहेवियर के लिए जो रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, उन सभी चीज़ों को हम इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन का नाम दे देते हैं. देन व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स फॉर इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन? फर्स्ट ऑफ ऑल, अटेंडेंस एंड पंक्चुअलिटी. अटेंडेंस होनी चाहिए एंड द वर्कर शुड बी पंक्चुअल. वर्क प्लेस सेफ्टी एंड कंप्लायंस. वहाँ पे जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, सेफ्टी प्रोसीजर, सेफ्टी मेथड, सेफ वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए. प्रोडक्टिविटी के जो भी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उस पे वर्कर्स को दे शुड स्टिक टू इट. एंड देन कंपनी की जो पॉलिसीज हो और एथिकल गाइडलाइंस हो, they all should be complied with. Now, what is the importance of that? It ensures smooth organizational functioning. Then, it promotes efficiency and effectiveness in the workforce. It also creates a safe and healthy work environment. I'm really sorry for the short 5 seconds, 6 seconds break as I am suffering from cold. That's why I need to take the break. So, now, what is the importance for the industrial discipline? It basically ensures smooth organizational functioning. Organization की functioning काफ़ी smooth चलेगी if the things are properly followed as per the company norms, procedures, standards, rules, policies जो भी होगा. Right? Then efficiency बढ़ेगी और effectiveness भी बढ़ेगी वहाँ पे in the workforce, and also a safe and healthy work environment रहेगा क्योंकि safety procedures वगैरह अगर follow होंगे तो रहेगा. Then what are the measures which can be taken for maintaining discipline? First of all, clear rules and expectations होने चाहिए. Ambiguity नहीं होनी चाहिए. Vague terms नहीं होने चाहिए. Then training on workplace policies. जो भी policies होंगी हमारे companies की उस पर एक training तो होनी चाहिए. Then fair enforcement of disciplinary actions. जो भी disciplinary actions होंगे उनको fair तरीके से apply करना चाहिए. देन प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन अप्रोच. ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटी सी मिस्टेक के लिए तुरंत टर्मिनेट कर दे. वार्निंग हो, सस्पेंशन हो एंड ऑल्सो टर्मिनेशंस अगर ज़रूरी हो तो. देन इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस अगर देखें, सो व्हाट इज दिस? ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम एज अ टर्म हम देख सकते हैं विद द ज्यूरिसडिक्शन, जुडिशरी. राइट? तो यहाँ पे लीगल एस्पेक्ट्स हो जाएगा हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस का एंड एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस का. सो दिस इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ लॉ डीलिंग विथ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस. देन इट गवर्न्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ बोथ पार्टीज. यहाँ पे अगर हम देखें की एरियाज कवर्ड, सो फर्स्ट वन इज लेबर लॉज जो कि हमारे एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को गवर्न करते हैं. देन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, लीगल अग्रीमेंट्स जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन करते हैं बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर. देन ट्रेड यूनियन लॉ, दैट इज बेसिकली राइट्स एंड रेगुलेशंस जो कि हमारे ट्रेड यूनियन से रिलेटेड होते हैं. देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन mechanisms like conciliation, arbitration and adjudication. Then occupational health and safety. These are the laws that ensure safe working conditions. And then workplace discrimination and harassment, legal protections against unfair treatment, employee benefits and compensation, laws ensuring fair wages, bonuses and welfare measures. Now, इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको समझ आ गया, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट समझ आ गया, इंडस्ट्रियल पीस समझ में आ गया एंड इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन ऑल्सो. नाउ लेट्स मूव ऑन. सो नाउ द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बहुत पीसफुली चीजें चली हों. देयर हैज ऑलवेज बीन कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द एम्प्लॉयर्स के इंटरेस्ट एंड वर्कर्स के इंटरेस्ट. इन जनरल एम्प्लॉयर क्लास जो होती है दे यूजुअली अडॉप्ट इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्कर. टेंडेंसी हमेशा ये रही है मैनेजमेंट क्लास की टू एक्सप्लॉइट द वर्कर्स. राइट? बेसिकली क्या होता है कि ह्यूमन बिहेवियर वर्कर्स के साथ नहीं रखते हैं ये,
एंड ऑल्सो लैक ऑफ प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, वेजेस को भी कम रखते हैं, एंड ऑल्सो ओवरलुकिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। ये कोई भी नई बात नहीं है हमारे एम्प्लॉयर्स के लिए। अगर हम वर्कर क्लास की तरफ देखें तो दे वांट गुड वर्किंग कंडीशन, डेवलपमेंट के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए, एंड इवन मैनेजमेंट में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एंड ऑल्सो इन द प्रॉफिट शेयरिंग। तो जब एम्प्लॉयर्स एक जस्ट और कोऑपरेटिव एटीट्यूड हमारे लेबरर्स और वर्कर्स की तरफ नहीं अडॉप्ट करते हैं, देन वहां पे डिसकंटेनमेंट होता है हमारे वर्कर्स के बीच में, और फिर जिससे आगे जो होता है दैट इज इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, राइट। और जब एम्प्लॉयर्स कंसर्न्ड होते हैं अपने खुद के इंटरेस्ट से, और फिर वो अटेंशन ही नहीं देते जो कि वर्कर्स की ऑब्वियसली जो जस्ट और रीजनेबल डिमांड्स हो, उनकी बात हो रही है यहाँ पे, तब फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है। नाउ अब हम देख सकते हैं हमारे कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को। तो अगर हम इसे डिवाइड करें इन वेरियस सब पार्ट्स, तो सबसे पहला पार्ट होगा हमारा लो वेजेस, इकोनॉमिक कॉजेज में लो वेजेस। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज में वेजेस कम होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि लेबरर्स अपने मिनिमम जो नेसेसिटीज होती हैं उनकी, वो मेंटेन नहीं कर पा रहे होते हैं। और लेबर क्या डिमांड करता है कि उन वेजेस को कम से कम काम के हिसाब से तो रखो, उस हिसाब से बढ़ाओ। तो ऐसा अगर डिमांड आती है तो दैट बेसिकली लीड्स टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एंड हायर वेज रेट का डिमांड करना ये एक बहुत मेजर कॉज है, मोस्ट डोमिनेंट कॉज है हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड, राइट। नाउ डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस बेसिकली हमारे जब सैलरी आती है तो डीए लिख के आता है। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग बेसिकली बढ़ रहा होता है विद द टाइम, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, राइट। तो इन्फ्लेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए डियरनेस अलाउंस को दिया जाता है। तो यहाँ पे वर्कर्स उस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए दे डिमांड एडिशनल रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डियरनेस अलाउंस। तो जब डियरनेस अलाउंस का डिमांड होता है और अगर इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है बाय द मैनेजमेंट, दिस कैन ऑल्सो लीड्स टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। देन प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन जो हो रहा होता है कंपनी में, दैट इज बेसिकली बाय द वर्कर्स। यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं जाते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, मतलब डायरेक्टली प्रोडक्शन को जो लिंक होता है वो वर्कर्स का होता है, राइट। तो एम्प्लॉयर्स का जो प्रॉफिट है वो बेसिकली लेबर काम करते रहते हैं तभी होता है, और लेबर की एक डिमांड रहती है कि इन्हें एज अ मशीन ट्रीट ना किया जाए, rather they should be treated as partners in production, right। और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड वो अपना शेयर मांगते हैं। अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होता है तो दे बेसिकली डिमांड शेयर आउट ऑफ दैट इंक्रीजिंग प्रॉफिट। और जब ये प्रॉफिट शेयरिंग की जो डिमांड होती है, अगर इसे एम्प्लॉयर रिजेक्ट कर देता है, देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाता है। देन बोनस डिस्प्यूट्स, बोनस डिस्प्यूट्स अगर वर्कर्स बोनस की डिमांड करेंगे और वो नहीं मिलेगा तो इसमें भी वो होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा, राइट। वर्किंग कंडीशंस देखेंगे तो अनसेफ और इनएडिक्वेट फैसिलिटीज होती हैं जब, तो दिस ऑल्सो लीड्स टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। वर्कर डिमांड करते हैं कि बेटर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, तो अगर उसकी डिमांड नहीं मेट हो रही होती तो देन डेफिनेटली द डिस्प्यूट वुड बी हैपन। एक्सेसिव वर्क आवर्स, तो वर्किंग आवर अगर ज़्यादा हो जाते हैं और वेजेस कम रहती हैं, तब भी जो डिमांड होता है वर्कर्स का कि वर्क आवर्स को रिड्यूस किया जाए या फिर वेजेस बढ़ाई जाएं, तो अगर वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती हैं तो दैट लीड्स टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। नाउ लेट्स कम टू द मैनेजेरियल कॉजेस। तो मैनेजेरियल कॉजेस में क्या होगा कि बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे वर्कर्स पे तो डिपेंडेंट होती ही हैं चीज़ें, प्रोडक्शन वगैरह, बट एक जो मेजर सक्सेस का कारण होता है दैट इज द प्लानिंग पार्ट। सो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड्स ऑन द मैनेजेरियल कैपेसिटी। तो जो मैनेजमेंट पॉलिसीज लेके आएंगे दैट वुड डिसाइड कि आगे डाउनफॉल होगा या फिर ग्रोथ होगी। सो इफ द मैनेजमेंट परस्यूज अप्रोप्रिएट पॉलिसीज, देन
जो इंडस्ट्रियल यूनिट का डेवलपमेंट है वो अपने आप ही होगा, बट कई बार ऐसा देखा गया है कि मैनेजमेंट की गलत पॉलिसीज के कारण डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कुछ मैनेजेरियल कॉजेज देखेंगे तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा नॉन रिकॉग्निशन ऑफ यूनियंस। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स का यूजुअली एटीट्यूड क्या रहता है ट्रेड यूनियंस के लिए, मतलब बहुत ही एंटागोनिस्टिक एटीट्यूड रहता है, बहुत ही एंटी रहते हैं ये एंटी यूनियंस, राइट। सो ये नहीं चाहते हैं कि इनके जो लेबरर हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, और फिर लेबरर को ऑर्गेनाइज करने से रोकने के लिए वो रिफ्यूज कर देते हैं टू रिकॉग्नाइज द यूनियंस, जिसके कारण एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। और फिर कई बार ये होता है कि वर्कर के बीच में ही एक रिफ्ट क्रिएट करने के लिए वो उनके राइवल यूनियन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उनके एक जेन्युइन जो यूनियन होता है उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। सो इससे भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाता है। देन वॉयलेशन ऑफ अग्रीमेंट्स अगर देखें तो जो भी अग्रीमेंट होगा एम्प्लॉयर्स को और वर्कर्स के बीच में, कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर्स उन एग्रीमेंट्स को एनफोर्स नहीं करते हैं या फिर उन पे बहुत ही स्ट्रिक्टली अधेयर नहीं करते हैं, तो जिसके कारण इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाता है। देन अगर हम थर्ड देखें इल ट्रीटमेंट, तो यूजुअली क्या होता है मैनेजर्स और जो सुपरवाइजर्स होते हैं तो वो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर कंसीडर करते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि वो वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा ख़राब तरीके से ट्रीट करते हैं, तो फिर इसके कारण इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तब भी हो जाता है। देन डिफेक्टिव रिक्रूटमेंट पॉलिसीज, तो डिफेक्टिव रिक्रूटमेंट पॉलिसीज का क्या मतलब हुआ कि कई बार वर्कर्स का रिक्रूटमेंट हो जाता है बाय द मिडिल मैन, जो कि ब्राइब देके रिक्रूटमेंट हुआ है, राइट। और यहाँ पे वर्कर्स को मतलब इतना है अनएम्प्लॉयमेंट है, सो उन्हें मजबूरी थी उनकी टू गिव द ब्राइब, तो जिसके कारण ये जो पॉलिसीज हैं ब्राइब लेके रिक्रूट करने वाली, तो दैट बेसिकली लीड्स टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। और भी कई सारी इसमें पॉलिसीज अगर हम देखें, प्रमोशंस में फेवरेटिज्म का चलना या फिर पनिशमेंट ट्रांसफर जिसे कहते हैं, तो अननेसेसरी और एक बायस ट्रांसफर कुछ हो गया तो वैसा सीन हो गया, या फिर ट्रेनिंग फैसिलिटीज के तरफ काफी कैजुअल अप्रोच हुआ, तब भी होता है ऐसा, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। एंड देन अनजस्ट रिट्रेंचमेंट एंड टर्मिनेशन अगर देखेंगे तो आर्बिट्ररी डिसमिशल अगर हो जाता है या फिर वर्कर्स का डिमोशन हो जाता है, और स्पेशली किनका, यूनियन मेंबर्स का, राइट, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। सो दीज ऑल आर प्रोवोकेटिव एक्ट्स जो कि हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को कॉज कर सकते हैं। एंड देन सिक्स्थ इज द पुअर लीडरशिप, यहाँ पे यूनियन लीडर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयर्स के साथ कोल्यूड कर लेते हैं, जिसके कारण वर्कर्स के जो इंटरेस्ट होते हैं दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड, राइट। देन वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, तो वही है कि जो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था तो उन्हें अधेयर नहीं करते हैं एम्प्लॉयर्स, सो डेफिनेटली तब भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा। देन एक्सक्लूजन फ्रॉम डिसीजन मेकिंग, वर्कर्स डिमांड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर्स चाहते हैं कि हमारा भी से हो कुछ, तो इनका जब मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती है एम्प्लॉयर्स यूजुअली अपोज ही करते हैं, सो डेफिनेटली दैट ऑल्सो लीड्स टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। देन पॉलिटिकल कॉजेज अगर देखेंगे तो सबसे पहला हो गया, जैसे हमने देखा था, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अगर होगा तो यूजुअली क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ट्रेड यूनियंस को अपने जो खुद के एजेंडाज होते हैं तो उसको फुलफिल करने के लिए ट्रेड यूनियंस को यूटिलाइज करते हैं, राइट। तो यूनियंस को कई बार होता है कि मिसलीड कर दिया जाता है और उन्हें इंस्टिगेट किया जाता है टू स्टार्ट द इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। एंड देन ट्रेड यूनियन राइवलरीज, तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन राइवलरीज का क्या मतलब होता है कि कई बार कंपटीशन होता है हमारे यूनियंस में ताकि ये प्रूव हो सके कि हु हैज द मोर डोमिनेंस, राइट, जिसके कारण डिविजन्स क्रिएट हो जाते हैं। देन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसीज, तो कोई भी लॉ जो कि एंटी वर्कर है दैट कैन ऑल्सो लीड टू पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्ट्राइक्स। एंड देन हिस्टोरिकल लेगेसी,
वर्कर एक्टिविज्म फ्रॉम द इंडिपेंडेंस एरा continues in anti-government strikes. Then, outcomes of industrial disputes. Outcome क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? एम्प्लॉयज के लिए क्या होता है? लॉस ऑफ वेजेस, जॉब इनसिक्योरिटी एंड स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स. इसका मतलब क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयज होंगे, जो वर्कर्स होंगे, उनकी वेजेस में कमी होगी, जॉब की सिक्योरिटी नहीं रह जाएगी, एंड ऑल्सो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच का रिलेशनशिप खराब होगा. फिर एम्प्लॉयर्स के लिए अगर देखेंगे तो रिड्यूस्ड प्रोडक्शन, फाइनेंशियल लॉसेस एंड रेपुटेशनल डैमेज. यहाँ पे हम एग्जांपल हमारा सैमसंग का काफ़ी ज़्यादा, जो कि रिसेंट एग्जांपल है. गवर्नमेंट के लिए देखेंगे तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा जिसके कारण रेवेन्यू डिक्लाइन होगी, सोशल ऑर्डर बिगड़ जाएगा, एंड ऑल्सो रेगुलेटरी प्रेशर बढ़ जाएगा. कंज्यूमर्स में अगर हम देखें तो स्कार्सिटी ऑफ गुड्स हो जाएंगे, प्राइस हाइक्स एंड कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी. एम्प्लॉयर्स के लिए देखें तो रिड्यूस्ड प्रोडक्शन, फाइनेंशियल लॉसेस एंड रेपुटेशनल डैमेज. गवर्नमेंट के लिए हमने देख लिया है, कंज्यूमर्स के लिए भी देख लिया है. देन फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का फॉर्म अगर देखें तो स्ट्राइक. तो यहाँ पे स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे काफ़ी सारा जो वर्कर्स का ग्रुप होता है, दे बेसिकली एक्सरसाइज प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट, काम रोक के और फिर प्रोटेस्ट करते हैं एम्प्लॉयर्स को कि उनकी डिमांड को फुलफिल किया जाए. देन अगर हम देखें टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स, सो यहाँ पे हम देखें प्राइमरी स्ट्राइक्स. तो प्राइमरी स्ट्राइक्स का क्या मतलब होता है? डायरेक्टली टारगेट एम्प्लॉयर्स. द नंबर वन इज घेराव. घेराव में क्या होता है? घेराव का मतलब अगर हम समझे घेरा से, राइट, तो घेराव करना इज एनसर्कलिंग द मैनेजर्स और सुपरवाइजर, ताकि उनके मूवमेंट को प्रिवेंट किया जा सके और प्रेशर किया जा सके उनमें, राइट. सो दैट वुड बी द घेराव. देन पिकेटिंग. पिकेटिंग का मतलब क्या होता है कि वर्क प्लेस के बाहर खड़े होके प्लेकार्ड्स पकड़े हुए, राइट, दिस इज पिकेटिंग. तो यहां पे प्लेकार्ड्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, वहां पे अपनी डिमांड्स लिखे हुए हैं, एंड पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, एंड ऑल्सो द कोवर्कर्स कि उन्हें ज्वाइन किया जाए. देन नेक्स्ट वन इज बॉयकॉट. तो बॉयकॉट का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस ऑपरेशंस को बॉयकॉट करना. मतलब जो भी बिजनेस के प्रोसेसेस होंगे तो वहां पे अपना जो भी रोल होता है, जो कॉपरेशन होता है, उसे विड्रॉ कर लेना, एंड टू रिफ्यूज टू हैंडल स्पेसिफिक गुड्स टू डिसरप्ट ऑपरेशंस. यहां पे बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी प्रोडक्शन प्रोसेसेस होगा तो वहां पे अपना सपोर्ट को विड्रॉ करके बॉयकॉट कर देना चीजों को, जिसके कारण प्रोडक्शन रुक जाए. देन स्टे अवे स्ट्राइक. तो स्टे अवे स्ट्राइक में क्या होता है कि इसमें प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, डिमॉन्स्ट्रेशंस होता है और रैलीज की जाती है आउटसाइड द वर्क प्लेस, और वो ड्यूटी में नहीं जाते हैं. दे रिमेन स्टे अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस. देन पेन डाउन स्ट्राइक. पेन डाउन स्ट्राइक का मतलब हो गया कि बस पेन हमारी नीचे हो गई, हम वर्क प्लेस पे तो जाएंगे बट हम अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करेंगे. देन टोकन स्ट्राइक क्या हुआ? टोकन स्ट्राइक का मतलब हो गया कि जैसे कि हम समझ सकते हैं टोकन छोटा अमाउंट, तो एक पर्टिकुलर शॉर्ट और प्री डिटरमाइंड पीरियड के लिए एक ग्रीवांसेस को सिंबॉलिकली एक्सप्रेस किया जाता है, तब तक के लिए काम को रोक दिया जाता है. देन लाइटनिंग स्ट्राइक. लाइटनिंग कैसे होती है? सडन लाइटनिंग होती है, सडन बिजली गिरती है. देन यहां पे भी लाइटनिंग स्ट्राइक का सिमिलर मतलब है, अ सडन अनअनाउंस्ड स्ट्राइक विदाउट प्रायर वार्निंग टू मैनेजमेंट. देन गो स्लो स्ट्राइक. So here workers deliberately reduce productivity by working at slower pace. धीरे धीरे काम करते हैं जिसके कारण प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. पहले हो सकता है कि यूजुअली एक दिन में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हों, बट जब गो स्लो स्ट्राइक होती है सो दैट इज रिगार्डिंग कि हो सकता है कि हाफ कैपेसिटी में प्रोड्यूस हो. इतना धीमे काम करते हैं कि 50 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो रही है, और इवन 33 यूनिट्स, राइट. देन वर्क टू रूल स्ट्राइक. वर्क टू रूल स्ट्राइक का मतलब क्या हो गया? वर्क टू रूल.
मतलब जो भी हमारे रूल्स होंगे, रूल्स का मतलब कि जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तो हम सिर्फ उसमें जो भी लिखा होगा सिर्फ उतना ही काम करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा काम होगा वो हम नहीं करेंगे. सो दैट इज बेसिकली वर्क टू रूल स्ट्राइक. So here employees strictly adhere to their job descriptions, refusing additional tasks, overtime or flexible roles. Then hunger strike. As the name suggests, workers fast for an indefinite period, often near the workplace or employer's residence, to draw attention to their demands. Then secondary strikes देखेंगे. So that is basically sympathy strikes targeting organizations linked to employer. तो ये हो जाएगी हमारी सिंपथी स्ट्राइक. एंड देन मास स्ट्राइक अगर देखें तो मास स्ट्राइक इज जनरल स्ट्राइक एंड पॉलिटिकल स्ट्राइक. जनरल स्ट्राइक इज नेशन वाइड प्रोटेस्ट कलेक्टिव डिमांड्स के लिए, एंड पॉलिटिकल स्ट्राइक इज कि कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर लॉस के अगेंस्ट को प्रोटेस्ट करना. देन लॉकआउट्स में देखेंगे तो अभी तक जो हमने देखा दैट इज फ्रॉम द वर्कर्स पर्सपेक्टिव, ये वर्कर्स कर रहे होंगे ये सारी स्ट्राइक्स. अगर हम लॉकआउट्स को देखते हैं तो ये एम्प्लॉयर्स के साइड से होता है. जैसे कि लॉकआउट्स एज द नेम सजेस्ट, फैक्ट्री या फिर जो भी इंडस्ट्री हो उसको लॉक कर देना, प्रोडक्शन प्रोसेस को रोक देना. इससे आपको लग रहा होगा कि इससे एम्प्लॉयर का लॉस होगा, बट डेफिनेटली यहां पे एम्प्लॉयज का भी लॉस होता है, उनका जॉब इनसिक्योरिटी हो जाता है, लॉस ऑफ वेजेस, ये सारी चीजें हो जाती हैं. और ये इसलिए किया जाता है टू प्रेशर वर्कर्स इनटू एक्सेप्टिंग टर्म्स, राइट. अब हम यहां पे डिफरेंस देखेंगे स्ट्राइक एंड लॉकआउट के बीच में. तो स्ट्राइक में इनिशिएटर कौन होता है, वर्कर्स होते हैं, एंड यहां लॉकआउट में एम्प्लॉयर होते हैं. नेचर कैसा होता है फॉर द स्ट्राइक, सेसेशन ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉइज, यहां पे एम्प्लॉइज काम रोक देते हैं. एंड लॉकआउट में क्या होता है कि टेम्पररी पीरियड के लिए वर्क प्लेस को बंद कर दिया जाता है. यहां पे पर्पस क्या होगा, अपनी डिमांड्स को प्रेस करना. एंड लॉकआउट में क्या होगा, मैनेजमेंट टर्म्स को एनफोर्स करना. स्ट्राइक का स्कोप क्या होता है, यहां पे एम्प्लॉयर की प्रोडक्टिविटी रुक रही होती है. एंड लॉकआउट में क्या होता है कि वर्कर्स का लाइवलीहुड इफेक्ट हो रहा होता है. हियर इफ वी सी द इम्पैक्ट, तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है, एंड यहां पे इकोनॉमिक एंड डिसिप्लिनरी इम्पैक्ट होता है ताकि वर्कर्स को ठीक किया जा सके. देन वेराइटीज अगर देखें तो यहाँ पे काफी सारे फॉर्म्स होते हैं जो हमने देखा, घेराव, हंगर स्ट्राइक, वर्क टू रूल एंड ऑल्सो स्लो पेस. यहां पे लॉकआउट में कोई भी सब टाइप नहीं होता है, वो सीधा फैक्ट्री बंद कर देते हैं. नाउ लेट्स सी अबाउट द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट कैसे होता है. मान लेते हैं कि कोई डिस्प्यूट हो गया है, अब उसका सेटलमेंट कैसे होगा. तो इसके लिए अगर हम देखें तो यहां पे सबसे पहले बात आती है हमारी वर्क्स कमिटी के लिए, राइट. तो वर्क कमिटी क्या होती है, ये कमिटी बेसिकली जो भी वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इसमें, राइट. एंड ये बेसिकली डे टू डे वर्किंग प्रॉब्लम जो होती है उन्हें सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं, एंड ऑल्सो टू सिक्योर द इंडस्ट्रियल हार्मनी. सो दिस बेसिकली जो ये कमिटी है, दिस इज फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट, राइट. अब गवर्नमेंट इसमें कौन सी होगी, गवर्नमेंट इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. यहां पे गवर्नमेंट का कोई भी पार्ट हो सकता है जो कि उस पर्टिकुलर टाइम पे अप्रोप्रिएट होगा, राइट. और दिस इज बेसिकली फॉर्म्ड जहां पे 100 या 100 से ज्यादा वर्कर्स हो, तो वहां पे ये मैंडेटरी हो जाता है इसको बनाना. एंड फंक्शन क्या है, फोकस इज ऑन इंप्रूविंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस and resolving issues at the ground level. So this is basically function of the works committee. Now if we see about the conciliation, तो conciliation का मतलब क्या हुआ, to mediate disputes and encourage parties to reach a settlement without escalating conflicts. इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्फ्लिक्ट्स को बिना बढ़ाए बीच में ही जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉर्ट आउट कर देना और पार्टीज के बीच में मीडिएशन कर देना, राइट. देन कंसिलिएशन ऑफिसर,
So this is appointed by the government for specified areas or industries, right? Powers क्या होंगी? To investigate the disputes, and this officer can also enter industrial premises and inspect records. What would be the function of it? To persuade the parties to reach a fair settlement through mediation. Then, Board of Conciliation. This is constituted by the government when disputes remain unsolved by conciliation officers. जब इन पे सॉल्व नहीं हो पाता तब हमारा बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन बनता है. दिस बेसिकली फैसिलिटेट्स कलेक्टिव डिस्कशंस to resolve disputes, and it prepares a report and memorandum of settlement for the government. Now, third अगर हम देखें, so this is court of inquiry. So court of inquiry में क्या होता है कि इसे भी एक गवर्नमेंट ही सेटअप करती है, and this is basically regarding the investigation of disputes ताकि फैक्ट्स को वेरीफाई किया जा सके एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड द recommendations. So this basically has the same power as civil court, right? And this can summon witnesses, examine evidence, compel the production of relevant documents. Witnesses को बुला सकते हैं, evidence को examine किया जा सकता है, and also बोला जा सकता है कि जो भी relevant documents हो उन्हें सामने लाया जाए. What is the outcome of it? Submit findings to government to inform further actions. फिर ये आगे गवर्नमेंट को सबमिट कर देते हैं. देन एडजुडिकेशन हो गया. एडजुडिकेशन का क्या मतलब हुआ? रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स थ्रू जुडिशियल इंटरवेंशन व्हेन पार्टीज फेल टू रीच एन अग्रीमेंट वॉलंटरली, राइट? तो यहां पे अगर मीडिएशन वगैरह जब नहीं हो पाता है तब हमें जुडिशियल इंटरवेंशन लेना पड़ता है जब वो चीजें सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे होते हैं. तो यहाँ पे वॉलेंट्री एडजुडिकेशन होता है और कंपलसरी एडजुडिकेशन होता है. सो ये एडजुडिकेशन बेसिकली एक अल्टीमेट रेमेडी है और यहाँ पे एक थर्ड पार्टी आती है जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, राइट? तो वॉलेंट्री एडजुडिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं वो अपनी मर्जी से रिफर कर रही हैं, और कंपलसरी में ये हो गया कि डिस्प्यूटिंग पार्टीज का कंसेंट के बिना ही रेफर कर दिया जा रहा है. फिर यहां पे अगर हम देखें 3 tier एडजुडिकेशन मशीनरी, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 बेसिकली प्रोवाइड्स फॉर अ 3 tier एडजुडिकेशन मशीनरी. यहां पे सबसे पहला होगा हमारा लेबर कोर्ट, जिसकी कंपोजिशन क्या होगी? एक इंडिपेंडेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा. व्हाट वुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ हिम? क्वालिफिकेशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, एंड ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फॉर एटलीस्ट 3 years, एंड मस्ट हैव हेल्ड एनी जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 7 years. इनकी जुरिस्डिक्शन कहां पे होगी? हिज जुरिस्डिक्शन वुड बी डीलिंग विथ द प्रॉपर्टी और लीगैलिटी ऑफ एन ऑर्डर पास्ड अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स, एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, disputes related to wrongful dismissal or discharge of employees, withdrawal of statutory concessions or privileges, the legality or otherwise of a strike or lockout, all matters not reserved for industrial tribunals. और बाकी जो matters जो industrial tribunals के लिए रिजर्व नहीं रखे गए हैं वो सारे मैटर्स हमारे लेबर कोर्ट में डील हो जाएंगे, राइट? ये स्ट्राइक वगैरह की लीगैलिटी को भी क्वेश्चन कर लेता है. देन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, अभी हमने क्या देखा? लेबर कोर्ट देखा. नाउ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, यहां पे कंपोजिशन क्या होगा? एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर विद द गवर्नमेंट ऑप्शनली अपॉइंटिंग 2 असेसर्स टू एडवाइज. ये मैंडेटरी नहीं है, यहां पे गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकते हैं 2 असेसर्स को जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को एडवाइज करेंगे. क्वालिफिकेशन क्या होगी? सेम एज लेबर कोर्ट. नाउ ज्यूरिसडिक्शन, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, इनका स्कोप लेबर कोर्ट से ज्यादा वाइडर होता है, एंड दे बेसिकली डील विथ वेजेस इंक्लूडिंग देयर पीरियड एंड मोड ऑफ पेमेंट, कंपनसेटरी एंड अदर अलाउंसेस, आवर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट पीरियड्स, लीव विथ वेजेस एंड हॉलीडेज,
bonus, profit sharing, provident fund and gratuity, classification by grades, rules of discipline, rationalization and retrenchment of employees, closure of establishments or undertakings, any other matters prescribed by the government. Right? Now, नेशनल ट्रिब्यूनल की एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे होती है? दिस इज बेसिकली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, नेशनल चीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. एंड डिस्प्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. मैं आता हूं डैडी बस 7-8 मिनट में, 5 मिनट में. सो नेशनल ट्रिब्यूनल हम देख रहे थे. That would be disputes of national importance and issues likely to affect industrial establishments across more than one state. जहां पे नेशन वाइड बात हो रही होगी या फिर एक स्टेट से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व होंगे, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा नेशनल ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट करेगा. देन कंपोजिशन क्या होगी? वन प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो कि हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट. He has held the office of chairman or a member of the labor appellate tribunal for at least 2 years. यहाँ पे हम देखें तो लेबर कोर्ट की प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन होगी दैट वुड बी द सेम. यहाँ पे he should have been a judge of high court, held the office of chairman or a member of the labor appellate tribunal for at least 2 years. यहाँ पे मैक्सिमम एज भी दी हुई है, 65 ईयर्स से कम होने चाहिए. 2 असेसर्स मे बी अपॉइंटेड टू एडवाइज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स. यहां पे हमारे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में भी ऑप्शनल था 2 असेसर्स को अपॉइंट करना. देन एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन. अगर कोई भी डिस्प्यूट नेशनल ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया गया है तो कोई भी लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल उस मैटर में एडजुडिकेट नहीं कर सकते. व्हाट वुड बी द फंक्शंस? holds proceedings referred by the central government, submits an award or report to the government upon conclusion. So यहाँ पे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रिकमेंड करेंगे प्रोसीडिंग्स को, सो दे कैन होल्ड इट एंड ऑल्सो गवर्नमेंट को रिपोर्ट तैयार करके देते हैं. अब हम यहाँ पे देखते हैं सेटलमेंट टाइप्स, ये जो भी हमारा अभी हमने पढ़ा है तो उसके बारे में. तो कंसिलिएशन जो होता है उसका नेचर होता है नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस एंड दीज आर बेसिकली एप्लीकेबल टू डिस्प्यूट्स रिक्वायरिंग मीडिएशन. वॉलंटरी एडजुडिकेशन देखें तो म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड इट रिक्वायर्स बोथ पार्टीज कंसेंट. कंपल्सरी एडजुडिकेशन देखें तो मैंडेटरी रिजोल्यूशन होता है एंड दिस इज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट्स. So these things are given in our Industrial Disputes Act 1947. अब हम इन जो पर्टिकुलर एक्ट है हमारा, लेट्स सी द सिग्निफिकेंस ऑफ इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमारा नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, तो इंडस्ट्री के जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उन्हें रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म होगा इधर. एंड इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर नेगोशिएशन, कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन, ताकि डिस्प्यूट्स जो है पीसफुली सेटल हो सके. Then regulation of strikes and lockouts. It controls conducts. जब स्ट्राइक और लॉकआउट हो रहा होगा तो बेसिकली क्या कंडक्ट फॉलो किया जाएगा, दैट इज रेगुलेटेड बाय आवर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947. It also specifies procedures to be followed by both employers and employees, ensuring legal compliance. Then worker protection. यहाँ पे बेसिकली this safeguards workers against victimization for participating in union activities or raising grievances. यहाँ पे प्रोटेक्शन होता है वर्कर्स को, अगर वो यूनियन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो उन्हें टारगेट ना किया जाए एम्प्लॉयर के साइड से फॉर पार्टिसिपेटिंग इन यूनियन एक्टिविटीज, और अगर कोई ग्रीवांसेस को उठा रहे होते हैं. देन प्रमोशन ऑफ हेल्दी रिलेशंस. So it encourages cooperation and mutual respect between employers and employees, fostering a collaborative work employment environment. Then ensuring workforce stability, job security को promote किया जाता है and fair working conditions that leads to stable and productive workforce. So this was our industrial disputes.
काफ़ी डिटेल में और काफ़ी क्रिस्प नोट्स के साथ हमने ये सारी चीज़ें की हैं। हमने क्वेश्चंस जो देखे थे, वी वुड बी डीलिंग इट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन यू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स एंड फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यू वुड बी मोर इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन सॉल्विंग। So thank you so much for staying consistent. This is me, Jailesh Gupta, signing off. Thank you so much. Bye bye. Take care.